अब बच्चों बात करेंगे हम यूनिट 4 की। यूनिट 4 में इसलिए बच्चों यहाँ पर ले रहा हूँ कि देखो मैंने तुम्हारी बेसिक थ्योरी बच्चों जब मैं कोई यूनिट कराता हूँ थ्योरी के साथ कराता हूँ, तो यूनिट 3 में तुम्हारे कुछ नहीं था, थ्योरी सहित जो भी पॉसिबल था, जितना मैक्सिमम पॉसिबल था मैंने तुम लोगों को पढ़ाया। अब बच्चों यूनिट 4 की बात करो। नाउ यू हैव हियर लीनियर इक्वेशंस in two variable here, two variable बच्चों, but you have to also solve these questions with the help of graph. So you need your graphical system again here. तो बच्चों हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या चीज है, लीनियर इक्वेशन है क्या, हम कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। दिस इज द मेन थिंग बच्चों। तो बच्चों इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला होता है बच्चों कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 ओके इज known as linear equation where a, b and c are the real numbers and x and y are the variables. That is the reason you are seeing it linear equations in two variables. Okay, so if you want to understand this thing, you should write here linear equation in two variables. Two variables I have written here. Why? Because up to your previous classes you have studied about one variable equation. Look here, this is two variable equation, ax plus by plus c equal to g. Here a, b and c are real numbers, while x and y are variables. Look here, but up to your class 8 you have studied here linear equation in one variable and it is compulsory to study this thing. वन वेरिएबल बच्चों वो इसलिए जरूरी है कि जब तक आप वन वेरिएबल नहीं जानोगे टू वेरिएबल समझ में नहीं आएगा। एंड हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? लुक हियर ax plus b equal to 0. Here we have only one variable x, okay, a and b are the real numbers. Here we have two variable x and y. So this is the difference between one variable equation and two variable equation, okay, and you can understand this thing or difference between linear equation in two variable and linear equation in one variable, okay. And then if you need, then you can solve the linear equation by graphical method, then elimination method, substitution, but now it is not in your class. You will study about these things in your next class, means 10th class, okay. First in your exercise you have to form here the linear equation if some statements are given. For example, the cost of notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation of the variable in two variables to represent this statement. And here the notice now you have to notice it that the cost of notebook is given as rupees x and the cost of pen is given as rupees y in your book. Look here बच्चों कोई नई चीज नहीं है। अगर देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन आप क्लास 6 से आप करते हैं और वहां भी देखो बच्चों उसमें लिखा रहता है जैसे कि इफ लुक हियर इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 5 and sum of two number is 5. If one number is twice the other, find the number. बच्चों आप क्या मानते हो? Let first number be x and other number is twice, means other number will be 2x. तो बच्चों वहां पर हमने twice 2x क्यों माना? Because we are solving here the question or the equation of one variable. इसलिए हमने x लिया और कंडीशन में भी हमने x को ही शो किया क्योंकि हमें वन वेरिएबल जाना है। लेकिन यदि इसी को हम टू वेरिएबल में सॉल्व करें and if we have two number here then we will take here first number x and other number y because we need here two variables. तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पर अब एक चीज बच्चों ध्यान रहे, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अब बताओ बच्चों
मैं यहाँ क्वेश्चन तो नोट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको स्वयं नोट करना बच्चों। ध्यान रखना, अगर आपको इसका पीडीएफ भी जाए, इसकी फोटो कॉपी भी जाएगी बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं नोट करना है। मैं इसका सिर्फ सॉल्यूशन आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कास्ट ऑफ नोट। बच्चों मैं क्वेश्चन पूरा रीडिंग करता हूँ, तो जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और बुक आपके सामने होगी, तो क्वेश्चन तो मैं यहाँ मैं रीडिंग कर रहा हूँ और बुक आपके सामने होगी, आप बुक से रीडिंग करिए, मेरी बात को सुनिए और फिर क्वेश्चन को समझिए। तो लेट लुक हियर, लेट कास्ट ऑफ अ नोटबुक बी x and cost of a pen be rupees y. If it is cost, then you can put here rupees. Okay. Now you should read your question minimum twice or thrice. क्यों बच्चों? क्वेश्चन की बारीकी तभी समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, एक चीज लिखा करो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और केवल लिखो नहीं, पढ़ने के बाद उसको यहाँ पर शो करो, तुम्हें जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स माई गारंटी। बच्चों क्या लिखा इसमें? द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। क्या लिखा देखना गौर से, मैं तुम्हें कंडीशन लिख के बता रहा हूं, उसमें ये लिखा है कास्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस, मीन्स 2 into कास्ट ऑफ पेन। और बच्चों अगर तुमने ये कंडीशन लिख लिया, जीवन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गौतम सर की गारंटी है। सुनो, कास्ट ऑफ नोटबुक दैट इज x, 2 into cost of pen that is y, but you have to write this in the form of this. So you will put here x minus 2y equal to 0. Now this is in the form of ax plus by plus equal to 0. Here c is 0, so you need here only x minus 2 equal to 0. So this is the linear equation form of the given statement. Then look here, your some equations are given here and you have to write these in the form of general form of linear equation. 2x plus 3y equal to 9.35 bar. Okay, if you have to write this in the form of linear equation, so look here, what is the linear equation for? ax plus by plus c equal to 0. तो इसके रूप में लिखिए 2x plus 3y, इसको ट्रांसपोज करिए, माइनस 3.5 बार इक्वल टू 0। यहाँ कोई सॉल्यूशन बच्चों आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल आपको इसके फॉर्म में शो करना है। आपको देखना है कि आप उसको सही ढंग से इक्वेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। y माइनस लुक हियर, x माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। चलो क्वेश्चन बुक का ही ले रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों सबसे पहले रेशनल नंबर है, उसको हम सीधे सिंपल फॉर्म में कर लें। तो एलसीएम लेंगे 5, तो 5x माइनस y, 5 का 10 मल्टीप्लाई करें 50 इक्वल टू 0। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। एनी डाउट? सिमिलरली you can solve all the question. Any doubt? Now look here, then you have 4.2. Question number 1, you have already here y equal to 3x plus 5, y equal to 3x plus 5. Now you have to tell here if this equation has the unique solution or it has only 2 solutions or infinite many solutions. बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? केवल एक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। सुनो बच्चों, बहुत सिंपल बात है, हमें यहाँ y इक्वल टू दिया है तो x की वैल्यू पुट करो। पहले मैं x वैल्यू रखा हमने 0, तो y इक्वल टू 3 into 0 प्लस 5, यह 5। अब आप x इक्वल टू 1 रखिए, तो y इक्वल टू 3 into 1 प्लस 5, यह 8। देन x इक्वल टू 2 रखिए, तो y इक्वल टू 3 into 2 प्लस 5, 6 5 11। बच्चों ये तो कभी एंड होने वाला नहीं है, इसका मतलब क्लियर है बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ?
इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इसका एंड होने वाला नहीं है। अब बच्चों राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों वही नीचे क्वेश्चन दिया है सेकंड में, उसके आपको केवल 4 सॉल्यूशन निकालने, 2x प्लस वाई इक्वल टू, बच्चों इसको सॉल्यूशन इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो निकल आएगा, लेकिन यदि इसको इजीली करना, अच्छे तरीके से करना, तो पहले आप y को सब्स्टिट्यूट कर लो या x को, तो 7 माइनस 2x। अब बच्चों कितना आसान, हम वैल्यू किसकी रखेंगे x 0, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, यू हैव गॉट 7। अब x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, यू हैव 5। x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो यू हैव 3। अब देखो x इक्वल टू 3 रख लो, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो यानी 1। You need here only 4 solution and I have got here 4 solution.